Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm really feel very glad in grade 9 because it's my wish कि मैं आप लोगों को teach करूं, and today is our first class, हमारी पहली class है, and I try my level best to give you my best. Okay, if you have any query, any question, wait of your turn and ask me. Don't afraid of me. Okay. Oxford International School GH Campus, Biology Sim Textbook Board for grade 9 for class 9. See the next slide, syllabus. In syllabus, we have 1, 2, 3 and 4 section. See in red color, there is a section, A is section, and we have chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chapters and 4 section. 4 section को divide किया है in 10 chapters. In section 1, we have 1 chapter. Section 1 में हमारे पास एक chapter है Introduction to Biology. Introduction to Biology. Before biology, introduction to biology, we should know what is science. Science क्या है? अपना mic on कीजिए. What is science? आपकी theory science के बारे में क्या है? What is your theory about science? Put on your mic. अपना mic on कीजिए and give me answer. Hello. Are you hearing? I check the participants. हमारे साथ महक भी हैं, मुस्कान भी हैं, सकीना भी हैं. ओके, मे बी आपको हेजिटेशन हो आंसर ना है. डोंट वरी. आई विल टेल यू साइंस. Our universe operates under certain principles. Principles कहते हैं कुछ उसूलों को जो हमारी यूनिवर्स ने हमारे लिए बनाए हैं. ठीक है. For understanding of these principles, इन उसूलों की, इन प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमारे यूनिवर्स में साइंस ने हमारे लिए बनाए हैं, द एक्सपेरिमेंट्स आर डन. एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं एंड ऑब्जर्वेशन आर मेड. दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. If you have two things, अगर आपकी पर्सनैलिटी में आप में ये चीज़ें हैं दोनों कि you wish to do experiments and आपकी observation sharp है, then you can understand easily about science, about biology, about zoology, botany and everything. But for that you have to do experiments and observation. ऑब्जर्वेशन शार्प होना बहुत जरूरी. जब तक आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, मुशाहिदा नहीं करेंगे, व्हाई द माउस इज ऑपरेटिंग माय लैपटॉप, इफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन रेज इन योर माइंड्स, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में रेज होते हैं, आते हैं, तो इट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड साइंस. बिकॉज साइंस तो है ही ऑब्जर्वेशन. अब ये ऑब्जर्वेशन पर मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया. आई एम ट्राइंग कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँ. इट्स पॉसिबल कि इतना सा माउस और ये मेरे हाथ में, ये मेरे लैपटॉप को कैसे ऑपरेट करना है. इसे एक क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक की क्या से क्या हो जाता है, लेफ्ट क्लिक करती हूँ, ये क्या से. इस ऑब्जर्वेशन को जब मैंने एक्सपेरिमेंटल किया और मेरे सामने एक रिजल्ट आया, दैट इज साइंस. ये है साइंस. चीज़ों को समझें, ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, उनके रिजल्ट्स तक जाएं. दिस इज साइंस. ये है साइंस. आप स्लाइड में देखें. साइंस इज एवरीथिंग. अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एक्सपेरिमेंट, टूल्स, communication, everything. I'm going to read once again because everything, every sentence, every word is very important. You have to understand and learn.
after understanding. Okay, science. Our universe operates under certain principles. For understanding of these principles, the experiments are done and observations are made on the basics of which logical conclusion, logical, keep in your mind logical, solid होना चाहिए, logical conclusions are drawn. Such a study is called science. In brief, science is a knowledge based on experiments and observation. At the first मैंने आपको बताया था कि knowledge is science is based on experiment and observation. मैं मेरे 5 स्टूडेंट्स जो हैं 5 स्टूडेंट्स ऑफ बायो फ्रॉम grade 9, I wanna see your sharp observation and also do the experiment in your eye. मैंने स्कूल आना है और यहाँ पर जब भी हमने ऑनलाइन होना है, इन क्लास टाइमिंग के अलावा भी मैं आपके साथ ऑनलाइन हूँ. व्हेनेवर आई फील कि मुझे 9 क्लास की 5 गर्ल्स के साथ ऑनलाइन होना है, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन हो जाऊंगी और जूम पर भी. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने आपके अंदर ये स्किल्स ऑब्जर्वेशन के और एक्सपेरिमेंट के, ये दोनों स्किल्स डेवलप करना. जब तक ये डेवलप नहीं होंगे यू नेवर अंडरस्टैंड. अब साइंस समझ आ गया, साइंस क्या है? अपना माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए. सकीना आप बताइए, व्हाट इज साइंस? सकीना अपने माइक्स ऑन कीजिए. आप लोग सब है मेरे साथ? जी सकीना आप बताइए. यस. साइंस समझ आया? व्हाट इज साइंस? क्या है साइंस? कान आप भी अपना माइक ऑन कीजिए. व्हाट इज साइंस? देखिए हम आगे तब चलेंगे जब हमें बेसिक समझ आएगा. अगर हमें बेसिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा. सकीना इजीएस्ट वे में बताइए, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? महक आप बताइए. ऑब्जर्व करना और एक्सपेरिमेंट करना. दैट्स ग्रेट. साइंस इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स. साइंस बेस्ड है 2 चीजों पर, ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट. अब ऑब्जर्वेशन किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स. साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब आपको पता होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. इनकी स्टडी, इनकी ऑब्जर्वेशन, इनका कंक्लूजन, इनके एक्सपेरिमेंट को साइंस कहते हैं. इज दैट क्लियर? सकीना बेटा अब आप बताइए. आई विश के हर बच्चा बोले. 5 गर्ल्स तो है, मजा ही तब आएगा साइंस का, बायो का. चलिए बताइए, अपने वर्ड्स में बताइए, आई डोंट माइंड. सकीना मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक ऑन कीजिए. यस मैम. जी बताइए, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ किस चीज की? लिविंग थिंग. Good, living organism. It means now it's clear. Now you can put off your mics. अब आप अपने mics को ऑफ कर सकते हैं. साइंस क्लियर हो गया. अब हम नेक्स्ट चीज को स्टार्ट करते हैं. बायोलॉजी. दिस इज आर, अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए. बायोलॉजी. The scientific study of living organisms is called biology. Living organism. अभी मैंने आपको बताया था कि living organism, living things की study को biology कहते हैं. We call the study of living organisms is called biology. The word biology is obtained from 2 Greek words. 2 Greek words से मिलकर बना है. Bios means life. Bio का मतलब क्या है? Life, जिंदगी. And logos means thought, सोच, सोच of mind, thought of mind.
reasoning, or study. Bio is the study of living organism. It's obtained from two Greek words. दो Greek words से मिलकर बना है bio. Bio means life, and logos means thought, thought of mind, and reasoning or study. ठीक है. अब जब भी बायो का नाम आएगा, बायोलॉजी वर्ड आएगा, आपको पता हो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर वो चीज जानदार जो कि सांस लेती है, रिप्रोड्यूस करती है, इंक्लूड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. Fishes, birds, animals, all are including living organisms. ये सब के सब living organism हैं और इनकी study को biology कहते हैं. Biology obtained from two Greek words. One is bios and second logos. Bio means life. Bio का मतलब है जिंदगी, क्योंकि living organisms की बात हो रही है ना. And logos means thought of mind and reasoning and study. It means that all aspects of life in every type of living organisms are discussed in biology. बायोलॉजी में हम हर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं जिसका ताल्लुक जिंदगी से है. मैंने यहाँ स्लाइड पे दो पिक्चर्स लगाई हैं. व्हाट इज बायोलॉजी? आप इस पिक्चर में देखिए, कोई भी चीज आपको ऐसी दिख रही है जो कि बेजान हो, जिसमें जान ना हो? नो. See the tree, bird, the child, dog, and I think it's kangaroo. It's dog, and it's like a rabbit. ये सब के सब plant, flowers, all are living things. ये सब की सब living organisms. The study of living organisms is called biology. Living organism की study को कहते हैं biology. यहाँ देखिए सेकेंड पिक्चर में, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोस एंड लगोस. बायो मीन्स लाइफ एंड द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, थॉट ऑफ माइंड. अब अपना माइक ऑन कीजिए. अब मुझे बताइए बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे. दैट इज बेटर. Bios mean life. That's great. And logis mean through thought of mind. Thought of mind. Good. The study of biology is the study of Thought living of mind. organism. living organism. Very good. Now going on second slide. अब अपना माइक ऑफ कीजिए. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी तो हमें पता चल गया क्या है. अब इसकी ब्रांचेस कितनी है? हाउ मेनी ब्रांचेस? देयर आर मेनी ब्रांचेस. सो वी स्टडी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसे स्टडी करते हैं. Nearly 2 million species of plant and animals are known to the world. दुनिया में हम 2 million species of plant and animals को जानते हैं, जिनके बारे में साइंटिस्ट स्टडी कर हमें बता चुके हैं. नियरली वो कितनी है? 2 million species of plant and animals. इसमें plants और animals दोनों हैं because both are living organism and bio and science is the study of living organism, right? Modern biology does not concern only with the classification of these species but also deals with their functional aspects. जी, अब इसमें ये हमें ये बताते हैं कि उसकी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन स्पीशीज की है, जिसके फंक्शंस, उनके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से ग्रुप में आती है, उसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं. Some of the important branches of biology. बायोलॉजी की दो important branches हैं. Two main branches of biology. Number one is botany and second is zoology. Botany and zoology. सबसे पहले हमने पढ़ा साइंस. साइंस क्या है? Then biology. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में two important branches. सबसे पहले जैसे ही मैं पूछूं ना आपसे, how many branches? Many branches, but two branches are important.
One is botany and second is zoology. Botany is divided into following branches. अब botany, अब यहाँ पे पिक्चर देखिए स्लाइड में. Botany, botany is the study of, do you have pen? Do you have pen or notebook? Hello? Yes. जी, पेन और नोटबुक है, नोट डाउन करते जाइए. बॉटनी लिखिए. बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स. बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट एंड zoology इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स. बायो की टू इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं. बायो ऑब्टेन फ्रॉम टू, वो जो ब्लूटूथ है ना वो ले जाओ. टू ग्रीक वर्ड्स के बाद हम उस पे आए कि उसकी ब्रांचेस कितनी हैं. बायो की टू इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं. सकीना अपना माइक ऑफ कर दीजिए. बॉटनी एंड zoology. बॉटनी की डेफिनेशन में लिखिए स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड zoology स्टडी ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स कितना जिंदा रहते हैं, उनका लाइफ प्रोसेस क्या है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उस सारी स्टडी को zoology कहते हैं. प्लांट्स में सेल कितने होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी रिस्पायरेशन कैसे होती है, उनका फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कौन सा प्लांट कहाँ ग्रो करता है, ईच एंड एवरीथिंग स्टडी रिगार्डिंग टू द प्लांट्स इज स्टडी इन बॉटनी. बॉटनी की स्टडी में पढ़ा जाता है और zoology की स्टडी में each and everything regarding to animals. Is that clear? Is that clear? Hello? Mics on कीजिए. Yes. Yes. अच्छा महक, अब आप बताइए बायोलॉजी की जो दो मेन ब्रांचेस हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? Botany or zoology? Botany and zoology. That's great. Botany study of Plants. and zoology study of Animals. That's great. That's great. चलिए अब ऑफ कीजिए माइक. अब नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी. The study of form and structures of living organism is called morphology. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, उनका लाइफ स्टाइल स्ट्रक्चर. बेटा माइक ऑफ कीजिए. महक प्लीज माइक ऑफ कीजिए बेटा. यहाँ से आपको म्यूट करती हूँ. मिस मुस्कान का ऑन है माइक. मुस्कान माइक ऑफ कीजिए. मुस्कान स्टिल. अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, उनकी बनावट को, उनके लाइफस्टाइल की स्टडी को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी. इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स. उसको दो मजीद पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहले किसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है? बायोलॉजी को, बॉटनी एंड zoology. अब मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं. इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग पार्ट्स. इसके टू पार्ट्स हैं. द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में यू एंड मी, प्लांट्स, एनिमल्स सब इंक्लूड है. साइंस तो है ही नाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ना, स्टडी का. तो उसमें जो एक्सटर्नल स्टडीज है, एक्सटर्नल स्टडी मीन्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं देती हूँ कि आई हैव 5 सेंसेस. दिस इज माय आई, नोज, लिप्स, ईयर, हैंड, फिंगर्स. इनकी एक्सटर्नल स्टडी को कहेंगे मॉर्फोलॉजी. ये है एक्सटर्नल स्टडी. मेरा नोज का साइज इतना है, आईज मेरी ब्रॉड हैं या बड़ी हैं, व्हाटएवर, इस तरह की स्टडी जो है, दिस टाइप ऑफ एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स. इंटरनल हमारे अंदर क्या है,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा चीजें, जानदार चीजें, उनके इंटरनल पार्ट्स को, बॉडी ऑर्गन्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी, आपने वर्ड एनाटॉमी पढ़ा होगा, अक्सर डॉक्टर्स के लिखा होता है डॉक्टर, एनाटॉमी डॉक्टर एक एक्सटर्नल डॉक्टर है जो जाहिरी एक्सटर्नल जो पार्ट्स है उनकी स्टडी कर रहा है, उनके बारे में आपको बता रहा है। लेकिन एनाटॉमी बहुत खास या बड़े सर्जन्स होते हैं जो कि हमारे अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी स्टडी कैसे होती है, ऑर्गन कितना काम कर रहा है, कितना वीक है, किस चीज़ की नीड है, क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैंने जहाँ पिक्चर लगाई है, यहाँ फिशेस हैं। फिशेस के देखें सब एक्सटर्नल पार्ट्स, ये जो एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी है इसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल जो पार्ट्स की स्टडी है उसे एनाटॉमी कहेंगे। जी आ जाइए, कम ऑन। सकीना एंड other name is Sakina. One is Sakina and other is महक। महक एंड सकीना दोनों अपने माइक्स ऑन कीजिए। मुस्कान ऑल्सो। आई हैव 3 स्टूडेंट्स, तीनों अपने माइक्स ऑन कीजिए। अब बताइए मॉर्फोलॉजी क्या है? Morphology is the structure of living organism. The study of structure of living organism। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल स्टडीज जो आएंगी वो किस चीज की हैं और कैसे हैं? देखिए इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना मॉर्फोलॉजी को। पहला जो पार्ट है वो है एक्सटर्नल स्टडी। एक्सटर्नल स्टडी को कहेंगे मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्टडी को कहेंगे एनाटॉमी। What we call the internal study of living organism is called, क्या कहेंगे? इंटरनल स्टडी, एनाटॉमी। ठीक है, माइक्स ऑफ कर दीजिए, आपकी तरफ से काफी प्रॉब्लम आ रही है। माइक ऑफ कीजिए तीनों आप लोग बेटा। गुड, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। हिस्टोलॉजी, the study of cells and tissues with the aid of the microscope is called histology. Histology कहते हैं study of cells and tissues। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक सेल बनाते हैं। अब वो सेल क्या है, कितना है, कौन से उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज ने मिलकर सेल बनाया, this study under the microscope is called histology. Definitely we can never see the cell or tissue with our naked eye। हम अपनी आम आंख से सेल को या टिश्यू को नहीं देख सकते। We use microscope to see the very small, very tiny living organisms. In cell and tissues are living organisms। टिश्यूज मिलके सेल बनाते हैं। अब इनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। द स्टडी of structure and functions of cell and their originals is called cell biology। सेल की स्टडी को, सेल के स्ट्रक्चर को सेल बायोलॉजी स्टडी कहते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है ऊपर टिश्यूज की और सेल की अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इस सारी की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर और एनी कंफ्यूजन? आंसर मी। हेलो, समझ आ गया है हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी? बेटा माइक ऑन कीजिए, बताइए समझ आ गया है?
हेलो, महक, मुस्कान, सकीना, अपने माइक्स ऑन कीजिए। हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी समझ आया है? सिर्फ मुस्कान हमारे साथ है। आई थिंक लाइट का इशू हुआ होगा, जो ऑफलाइन हो गई है, बाकी दोनों बच्चियां। सकीना की रिक्वेस्ट आ गई है, मैंने एडमिट कर दिया सकीना को जी। अनम्यूट कर दिया मैंने यहाँ से आप लोगों को। मुस्कान, चलिए बताइए, हिस्टोलॉजी, व्हाट इज हिस्टोलॉजी? किस चीज की स्टडी है हिस्टोलॉजी में? बताइए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं आपको यहाँ से म्यूट कर देती हूँ ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूँ। ओके, हिस्टोलॉजी, आई रिपीट वंस अगेन, the studies of tissues in cells under the microscope is called histology. सेल बायोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर को, सेल की बनावट को स्टडी किया जाता है और सेल बायोलॉजी। Physiology, study of different function performed by different parts of living organism is called physiology. हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट फंक्शंस किस तरह से फंक्शंस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में बॉय जो है वो रनिंग कर रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, वी ऑल आर इन वर्किंग। इस वर्किंग की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। अगर हमारे यहाँ यहाँ पट्टों में या पेन में इस तरह के कोई पेन होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? फिजियोलॉजी के पास। ठीक है, इस स्टडी को जिसमें आपके डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट जॉब्स और फंक्शंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लेग्स का क्या काम है? रनिंग। इसकी स्टडी, हाथों की स्टडी, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट काम कर रहे हैं फिजिकल, की स्टडी को फिजियोलॉजी है। तो वेरी सिंपल वे में मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन निकाली ताकि आपको प्रॉब्लम ना, बट ऑन योर ग्रेड लेवल, आपके ग्रेड के लेवल। इकोलॉजी, study of organism in relationship to each other and their environment is called ecology or environmental biology. G, study of organisms in relations to each other. ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे से ताल्लुक, उनका एनवायरमेंटल स्टेटस, एवरीथिंग इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। ये जो मेरा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में जिससे मेरा रिलेशन है, इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ organism in relation to each other, relation to each other and their environment. Environment का जो word आ जाता है, everything around us include in our environment. इस सब का सब जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे environment पे आता है, इसकी study को ecology कहते हैं। Clear? See the next slide. Taxonomy. Taxonomy. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस को क्लासिफाइड किया गया है, चुन लिया गया है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ग्रुप्स बनाती हैं एंड सब ग्रुप्स बनाती हैं कि ये चार चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में है, ये 6 इस ग्रुप में है, ये 10 इस। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं।
Taxonomy is that branch of biology in which organisms are classified and given scientific name, और उन्हें एक scientific name दे दिया, जैसे vertebrates, invertebrates, living things, non-living things. ये हैं ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, डिवाइड कर दिया हमने। वर्टिब्रेट्स में कितने सारे ग्रुप्स दिया है, कितने सारे स्पीशीज दिया है। इनवर्टिब्रेट्स को हमने डिफाइन किया जिनमें बैकबोन है। इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड कर देना ग्रुप्स, इन सब ग्रुप्स में उनकी सिमिलैरिटीज देख के और उनके डिफरेंसेस देखे। जब हमने वर्टिब्रेट्स को एक ग्रुप में किया तो उसकी सिमिलैरिटीज देखी कि इन सब में बैकबोन है, इसलिए से हमने वर्टिब्रेट्स। जिसकी बैकबोन नहीं उसे हमने इनवर्टिब्रेट। ये किसने किया? हमने किया ना, साइंटिस्ट ने किया है। ये अल्लाह ताला ने ऊपर से करके नहीं दिया, ये हमारी सोच, हमारी अकल, जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, स्पेसिफिक काम के लिए भेजा है ना। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हमारे लिए इतनी वैक्सीन्स बना रहे होते हैं और इतनी बुरी बुरी जो डिजीजेस है उनके इलाज बता रहे होते हैं, तो ये सब अल्लाह ताला की ही वजह से है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें शकुल मखलूक़ात बनाया, हमें दिमाग दिया जिसे हमें इस्तेमाल करना है। एंड बेसिक ऑफ साइंस इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये वही कर रहे हैं। हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स और अपनी सोच से, अपने थॉट से क्लासिफाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनकी सिमिलैरिटीज देख के और उनके डिफरेंसेस देख के, और उन्हें स्पेसिफिक नाम ये वर्टिब्रेट्स हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनका ये काम है, ये इस ग्रुप में है, ये ग्रुप्स में है, ये सब ग्रुप्स। इज दैट क्लियर? होप क्लियर। Embryology. Embryology. The study of development. Embryology is the study of development of an organism from fertilized egg. Zygote is called embryology. देखें, एक बेबी जो है वो एग और स्पर्म से बनता है। एग और स्पर्म मिलते हैं तो बेबी बॉर्न होता है, बनता है। The stage between zygote and newly hatched or born baby is called embryo. The process in which eggs start to meet with sperm or sperm to meet with egg is called embryology। और इस embryology के फंक्शन में पूरे के पूरे प्रोसेस से एक एग से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है बेबी बनने तक का, से एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। सी इन द पिक्चर, ये एक एग से, एक एग एक स्पर्म से बना हुआ बेबी। दिस इज बायोलॉजी। अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन इसकी स्टडी कैसे बना, क्या हुआ, कौन सा स्पर्म, एक्स वाई या वाई एक्स, बेबी गर्ल या बेबी बॉय, इस सारी फर्टिलाइज एग के प्रोसेस को, ज़ायगोट तक बनने के प्रोसेस को, एम्ब्रियो में आने तक को, बेबी डिलीवर होने तक के प्रोसेस को एम्ब्रियोलॉजी। इट्स कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। See the next slide. Genetics. The study of methods and principles of biological inheritance of characters from parents to their offspring is called genetics. जी, इनहेरिट होती है चीज़ें, आपको पता है, आपने वर्ड सुना होगा इनहेरिट। हमें ये इनहेरिट हुई है, मुझे मेरे फादर से या मदर से। जेनेटिक्स चलती है नस्ल दर नस्ल। जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स, जेनेटिक्स जेंडर, जेनेटिक्स। जी, मैं आपको बता रही थी, जेनेटिक्स जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, जो भी इनहेरिट आपको पेरेंट्स से, आपके आबा और अजदाद से मिलती हैं, वो आगे से आगे पेरेंट्स टू पेरेंट्स मुंतकिल होती जाती है। चाहे वो कोई समटाइम आपने सुना होगा कि किसी को शुगर है पेरेंट्स को, तो वो इनहेरिट आप में भी आई है, वो आप में भी आ जाती है।
और लुक वाइज, फिजिकल वाइज, हाइट वाइज आपने देखा होगा कि मदर में बहुत सारे बच्चे जो है, गर्ल्स जो हैं वो अपनी मदर जैसे होती हैं, बेटे जो हैं वो जो फादर जैसे होते हैं। तो ये एक साइंस है जो कि जेनेटिक्स आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से मिलती है। अब हमारे पास है पेलेंटोलॉजी, प्लांटोलॉजी, प्लेंटोलॉजी, the body parts of ancient organisms or their impressions। जी, एंशर्ट्स के जो पुराने ज़माने के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फॉसिल्स को कहते हैं प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड प्लेंटोलॉजी। फॉसिल्स की पुराने ज़माने के जो इम्प्रेशंस मिलते हैं हमें एनिमल्स के या इंसानों के या प्लांट्स के, उसकी स्टडी को, उन फॉसिल्स की स्टडी को प्लांटोलॉजी कहते हैं। It also includes the study of origins and evolution of organisms. It can be divided into two parts. इसे भी हमने two parts में divide किया है। Plantology botany, plantology botany, इसमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट की होती है, प्लांट्स के फॉसिल्स के, प्लांट्स के जो पुराने निशानात, पत्ते, स्टैम्स, उनके जो फॉसिल्स रह जाते हैं जिन्हें बड़ा ही एक खास किस्म के केमिकल लगाकर आपको म्यूजियम्स वगैरह में भी रखा जाता है। एनिमल्स के भी आपने देखे होंगे। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड प्लेन्जोलॉजी। प्लेन्जोलॉजी, प्लांटोलॉजी की दो किस्मों में, दो पार्ट्स में हमें डिवाइड किया है। जैसे एक प्लांट्स की स्टडी, फॉसिल्स की स्टडी है, और दूसरा एनिमल्स की फॉसिल्स की स्टडी। इस पिक्चर में देखिए, ये एनिमल्स की है। प्लांटोलॉजी, प्लांटोलॉजी में डिवाइड जब किया है, प्लांटो बॉटनी, बॉटनी प्लांट्स, एंड प्लांटोजोलॉजी एनिमल्स। क्लियर? Biochemistry, the study of metabolic reaction taking place in living organisms is called biochemistry. These reactions may be constructive or destructive. अच्छा जी, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन की मैंने एक बड़ी खास डेफिनेशन लिखी है, वो मैं आपको बताती हूँ। Metabolic reactions are the chemical process that occur in all living organisms, जो कि सब के सब living organisms में होता है, which help them complete their life cycle, जो कि जिसकी वजह से हर living organism का life cycle complete होता है, and that is digestion process। ये है biochemistry, chemical reaction। मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक है ही आपके मेटाबॉलिज्म से, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, इसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी की बात करें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द practical application of organisms and their components for the welfare of human beings। जी, अब देखिए कि इन पिक्चर्स में भी आपको नजर आ रहा होगा कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो साइंटिस्ट काम करते हैं और डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उससे बायोटेक्नोलॉजी, that is called biotechnology। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही बुरी वबा फैली थी, बीमारी आई थी, बुखार है जिसका नाम है मलेरिया। अब मलेरिया को डायग्नोज करना, फिर उसका ट्रीटमेंट, उसकी वैक्सीन बनाना, और इस पे जो सारी की सारी स्टडी होती है, उस पर जितने लोग जितने ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है ना, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इज आल्सो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जिसके जरिए आप छोटी से छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं जो कि हम आम आँख से नहीं, इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। In ancient times, there was no distinction of biology and other sciences.
Different fields of science like biology, chemistry, physics, and mathematics are met together in the writing of ancient scientists. In ancient times, these subjects were studied under one head, science, but with the passage of time, the science developed very much and the huge scientific knowledge was then divided into different branches. जी, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, बायोलॉजी के रिलेशन की बात हो रही है। पहले पहले तो एंशंट ज़मानों में, पुराने ज़मानों में, पुराने वक्तों में, पुराने लोग, पुराने साइंटिस्ट क्या किया करते थे? बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एक ही टेबल पर, एक ही बुक में, एक ही जगह पे डिस्कस करते थे। एक ही बुक में बायो भी आ रही थी, केमिस्ट्री भी आ रही थी, फिजिक्स भी आ रही थी, मैथ्स भी आ रही थी। उन चारों चीज़ों का मिक्सचर था। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, साइंटिस्ट ने इसे डिवाइड करना शुरू कर दिया, इजी बनाना शुरू कर दिया। जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक ही बुक में, एक ही टेबल पर हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी और बायोलॉजी भी, तो कितना डिफिकल्ट है। ये जो डिविजन होती है ना, क्लासिफिकेशन होती है, ये हमारी आसानी की। अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, आप देखिएगा एक एक चीज़ की ब्रांचेस निकलेंगी, उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी, उसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, वो सब होगा। ये होता है चीज़ों को ईजी बनाना। अब देखें बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज, इसमें कितनी सारी चीज़, यहाँ पे माइक्रोस्कोप भी है, हार्ट भी है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी है, ये सब एक ही जगह पे डिविजन। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, रिलेशन ऑफ अदर साइंस कोर्सेज, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देखो बायोकेमिस्ट्री है सबसे पहले, फिर उसकी ब्रांचेस केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, 4 ब्रांचेस बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, पहले सब ये एक। बायोफिजिक्स, the study of various biological phenomena according to the principles of physics is called biophysics. For example, movement of muscles and bones based on principles of physics. G. Study of various biological phenomena according to the principle of physics is called biophysics. जी, फिजिक्स, फिजिकल बात हो रही है आपके फिजिकल मसल्स की, फिजिकल बोन्स की स्टडी को जिस पैटर्न में, जिस डिवीजन में, जिस क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड कर दिया, रख दिया है, उसे कहते हैं बायोफिजिक्स। सिंपल, पिक्चर देख के भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती, कॉन्सेप्ट्स क्लियर। Biochemistry. Definitions are very important. Keep in your mind. This is not a part of your book. बहुत खास मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों को इसी से नोट्स पढ़ें। This is your notes. ये आपकी notes हैं। Biochemistry, the study of different biochemical like carbohydrates, proteins and nucleic acids, इन सब की बात हो, ठीक है? Found in a cell of living organism and hundreds of the underlying chemical reaction in cells of organisms is called biochemistry. जी, बायोकेमिस्ट्री में देखें कितनी सारी चीज़ें आ गई, कार्बोहाइड्रेट्स आ गई है, प्रोटीन्स आ गई है, न्यूक्लिक एसिड आ गया है, इन सब की स्टडी, लिविंग, ये सब के सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कह रहे हैं, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है। Biochemistry, chemical reaction of carbohydrates, proteins, इनकी केमिकल रिएक्शन, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पार्ट करती हैं, हमारी लाइफ में क्या करती हैं, इन सब की स्टडी को है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ना, इनकी स्टडी हो गया बायोकेमिस्ट्री। बायोमेट्री, the data obtained from observation and experiments on living organism, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं इतनी मेहनत के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनालाइज करते हैं बाय वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड इज कॉल्ड बायोमेट्री। ये जो पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सपेरिमेंट्स करना, ऑब्जर्वेशंस करना, वो डाटा सारा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, रिजल्ट तक पहुंचना इज कॉल्ड बायोमेट्री।
Is that clear? Biogeography, the study of plants and animals and the basics of geographical distribution is called biography. बायोग्राफी में द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लासिफिकेशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बायोग्राफी है. नेक्स्ट, बायोइकोनॉमिक्स, the study of living organisms from economics point of view is called bioeconomics. Economics point of view से living organism की study bioeconomics कहलाती है. It includes the study of cost, effectiveness and viability of biological projects from commercial point of view. अब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू पर आ गए हैं, हम बता रहे हैं कि इकोनॉमिकल इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उसकी इफेक्टिवनेस है, उसकी स्टडी, उसे डिवाइड कर देना इस चीज़ में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बायो इकोनॉमिक्स के ऑब्जर्वेशन. Most of the biological investigations start with observations. I think आज का लेसन हमारा काफ़ी हो गया. ऑब्जर्वेशंस में नेक्स्ट यूनिट में करवाती हूँ आपको. अभी मैंने जितना पढ़ाया इससे रिलेटेड मैं आपको दे देती हूँ और फिर हम इस पे काम. ठीक है, बाय बाय.